today we will talk about the types of chemical reactions. So, the chemical reactions can be classified on two things. First is upon the basis of energy change in the reaction, and second is upon the basis of rearrangement of atoms. So upon the basis of energy change, we have two type of reactions. First is endothermic reaction and second is exothermic reaction. And upon the basis of rearrangement of atoms, we have total five type of reactions. First is combination, second is decomposition, third is displacement, fourth is double displacement, and fifth is redox reaction, also called oxidation reduction reactions. So today we will mainly discuss about endothermic and exothermic reactions. Okay. So what are endothermic reactions? So they are those reactions in which there is absorption of heat by the reactant molecules or other chemical species to react and form the products. यानी इसको बहुत सिंपली समझें तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पे एनर्जी जो है यूज़ होती है रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है. तो जो वर्ड है एंडोथर्मिक, ठीक है, तो ये जो वर्ड है एंडोथर्मिक, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ? तो ये जो वर्ड है एंडोथर्मिक, इस वर्ड को सबसे पहले यूज़ किया था मिस्टर मार्सेलिन बर्थलॉट ने. ठीक है. तो ये जो वर्ड एंडोथर्मिक है, इसमें जो वर्ड एंडो है वो एक ग्रीक शब्द है जो कि वर्ड बना है एंडोन से, जिसका मीनिंग होता है विद इन. ठीक है. और ये जो वर्ड आपका नेक्स्ट है थर्म, ये वर्ड बना है थर्मोस से, और थर्म का मतलब होता है हॉट या वार्म. तो इसका मतलब ये हुआ कि हीट विद इन, यानी ऐसी चीज़ जिसमें हीट एंटर करती हो. तो क्योंकि इस रिएक्शन में हीट एंटर करती है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन. So what is the general way to write the equation for endothermic reactions? So it is simply write the reactants plus energy or heat then products. ठीक है. या फिर reactants giving you product minus energy or heat. ठीक. Now we will take some examples to understand the endothermic reactions. So पहला मैंने रिएक्शन लिया है द इंट्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल विद वाटर. So when the glucose molecule interacts with water, it gives you hydrogen and oxygen, and the enthalpy change for this reaction is plus 6 to 7 kilojoule per mole. ये जो मैंने लिखा है एंथैल्पी चेंज, ये क्या है इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे. ठीक है. अब देखिए एग्जांपल नंबर 2 मैंने लिया है फोटोसिंथेसिस, जो कि बहुत ही कॉमन रिएक्शन है. इस रिएक्शन में क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाटर से रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड इट फॉर्म्स ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन. ओके. तो इसमें भी क्या हुआ, जो सनलाइट है वो एक्चुअली हीट का सोर्स है, तो इसलिए एंडोथर्मिक रिएक्शन हुई. नंबर 3, formation of nitrogen monoxide. So when nitrogen and oxygen gases react together, the heat is absorbed to react and the nitrogen monoxide forms. Number 4 is formation of carbon monoxide and hydrogen. So when red hot carbon means coke, when red hot coke is placed in a open vessel, and when we pour a good amount of water vapor or water steam, so when carbon and water interacts, they will give you carbon monoxide and hydrogen gas, which is used as a fuel. Okay, so now we will discuss about exothermic reactions. So what is exothermic reaction?
An exothermic reaction is a chemical reaction that involves the release of energy in the form of heat or light. यानी इस रिएक्शन में क्या होता है कि जब आपके रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं और जब प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट बनने के साथ साथ इसमें जो एनर्जी भी रिलीज होती है. So this reaction, these reactions are sources of energy. एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में या लाइट की फॉर्म में जो है रिलीज होती है. So the general way to write this equation for exothermic reactions is reactant arrow products plus energy. तो इन केसेस में हम जो एनर्जी को कहाँ लिखते हैं, आपके इक्वेशन के राइट साइड में, और इन द केस ऑफ एंडोथर्मिक एनर्जी विल बी रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रिएक्शन. ओके, नाउ वी विल टेक सम एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड दिस. पहला हमने लिया एग्जांपल कंबशन ऑफ मीथेन, यानी मीथेन गैस जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होती है तो इट विल गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड, water molecule and lot of heat. So because of emission of lot amount of energy, methane is used as a fuel. And example number 2 is combustion of glucose. तो हम सभी जानते हैं कि जब हम ग्लूकोज इंटेक करते हैं अपनी बॉडी में, सो वी विल गिव इंस्टेंट एनर्जी. तो जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज जाता है, इट रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन आवर ब्लड and it reacts with the oxygen to give you carbon dioxide, water molecule and energy. So that's why glucose is a source of energy. Okay, अब क्वेश्चन ये आता है कि किसी इक्वेशन को देख के हम कैसे पता करते हैं कि ये रिएक्शन जो है एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है. तो यहाँ हम बहुत जनरल वे में बात करेंगे. तो पहला मेथड क्या है, सी द सिंबल डेल्टा ऑन द रिएक्शन इक्वेशन. यानी अगर आपके रिएक्शन के इक्वेशन में अगर एरो के ऊपर डेल्टा बना है तो डेल्टा इज यूज्ड व्हेन वी सप्लाई द हीट टू द रिएक्शन. So the presence of delta on the arrow indicates that it is endothermic reaction. And method 2 is presence of temperature on the arrow. अगर आपके इक्वेशन के एरो के ऊपर अगर टेम्परेचर मेंशन है तो इसका मतलब यह है कि उस रिएक्शन में हीट सप्लाई हुई है और वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है. ओके, नंबर 3, the symbol for photons energy h nu indicates that light or radiation is used to indicate the reaction. तो अगर आपके इक्वेशन के एरो पर जो है अगर एच न्यू बना हुआ है, सिंबल बना हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर रिएक्शन में जो है हीट जो मतलब हीट है वो लाइट के फॉर्म में या रेडिएशन के फॉर्म में यूज की गई है टू इनिशिएट द रिएक्शन एंड द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक. ठीक, सो अब हम इन तीनों को एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे कि थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करते हैं तो क्या आपको देता है, वो कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो यहाँ पे देखिए हमने क्या बना है, डेल्टा. तो डेल्टा इंडिकेट कर रहा है कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है. ठीक, इन द एग्जाम्पल नंबर 2 वी हैव टेकन सिल्वर क्लोराइड. So when silver chloride decomposes, it will give you silver and chlorine gas. देखिए यहाँ पे एरो के ऊपर क्या लिखा है, एच न्यू. इसका मतलब क्या है कि इस कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए हमने जो है रेडिएशन का या लाइट का यूज किया. ठीक, अब देखिए थर्ड एग्जांपल हमने लिया है ऑक्सैलिक एसिड का. अगर हम ऑक्सैलिक एसिड को हीट करते हैं एट 110 डिग्री सेल्सियस तो ये ब्रेक होके आपको क्या देता है, फॉर्मिक एसिड मॉलिक्यूल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. सो बिकॉज द टेम्परेचर इज मेंशन्ड ऑन द एरो it indicates that it is also an endothermic reaction.
तो क्वेश्चन माइंड में ये आता है कि कैसे हम ये डिसाइड करते हैं प्रैक्टिकली कि रिएक्शन आपकी एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। सो आपको पता होना चाहिए कि एवरी रिएक्शन नीड्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी टू गेट प्रोसीड। यानी कोई भी रिएक्शन जो है वो एक्चुअली अपने आप नहीं होती। हर रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। सो द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इनिशिएट अ रिएक्शन इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी, and the energy required to complete the reaction is known as activation energy। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि अगर इस कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करें तो फिर इस हिसाब से तो हर रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन ही, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब ये होता है कि इसमें आप हीट सप्लाई कर रहे हो, एनर्जी सप्लाई कर रहे हो। तो क्या ये बात सच है? तो देखिए एक्चुअली मेन पॉइंट क्या है। इट इज डिसाइडेड अपॉन द बेसिस ऑफ ओवरऑल एनर्जी चेंज व्हेन द रिएक्शन इज कंप्लीटेड। तो जो भी आपके साइंटिस्ट होते हैं वो जब किसी रिएक्शन को लैब में स्टडी करते हैं तो वो क्या देखते हैं, दे एक्चुअली ऑब्जर्व एंड कैलकुलेट द टोटल एनर्जी चेंज इन अ रिएक्शन। तो ये डिसाइड होता है टोटल एनर्जी चेंज पे, कितनी एनर्जी जो है हमने रिएक्शन में लगाई और कितनी एनर्जी रिएक्शन से बाहर आई। So if the net amount of energy required to initiate a reaction is less than the net amount of energy released by the reaction, so that will be called exothermic reaction। इसका मीनिंग ये है कि मान लीजिए किसी रिएक्शन में आपने कुछ एनर्जी लगाई, ठीक, और जब एनर्जी रिलीज हुई तो जो एनर्जी रिलीज हुई उसका अगर अमाउंट बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू द एनर्जी वी हैव सप्लाइड, तो ओवरऑल जो चेंज होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा फॉर दिस रिएक्शन। सो द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच मीन्स चेंज इन एंथैल्पी विल बी नेगेटिव, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये जो डेल्टा एच है देखिए इसका मीनिंग क्या होता है। डेल्टा एच इज एक्चुअली द डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ टू थिंग्स। पहला हम क्या करते हैं, एनर्जी यूज्ड इन द बॉन्ड फॉर्मेशन दैट यील्ड्स प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो पहले हम मेजर करते हैं कि आपके बॉन्ड फॉर्मेशन में कितनी एनर्जी यूज हुई माइनस एनर्जी रिलीज्ड व्हेन द रिएक्टेंट बॉन्ड्स आर ब्रोकन। यानी जब आपके रिएक्टेंट के बॉन्ड टूटे तो कितनी एनर्जी टोटल रिलीज हुई। ठीक है, सॉरी कितनी एनर्जी हाँ रिलीज हुई। ठीक है, तो जब आपके प्रोडक्ट बने तब कितनी एनर्जी यूज हुई और जब आपके बॉन्ड टूटे तब कितनी एनर्जी रिलीज हुई। तो इसका जब हम डिफरेंस मेजर करते हैं तो हमें डेल्टा एच की वैल्यू मिलती है। अगर डेल्टा एच की वैल्यू अगर उस रिएक्शन के लिए नेगेटिव आती है तो इसका मतलब आपका जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है तो हम डिसाइड करते हैं कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये प्रैक्टिकली हम करते हैं और कैलकुलेट भी करते हैं। और समटाइम्स डिसाइडिंग this condition for the reaction is complex. It is not very easy as we know. So I hope you got the concept of endothermic and exothermic reaction. If you have doubt, please ask. Thank you so much.